We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello friends, welcome. In this video we are going to discuss about again basics of Android. So in my previous video I have been discussing basics of Android and we will continue with the same. So the first unit of our syllabus, mobile computing, is entirely based on the basics of Android. Okay, so chapter 1 was already discussed in my previous lecture, and now in this video we are going to discuss chapter number 2 of unit number 1, that is again basic concept continued. Here we will be discussing what is the environment, how can we set up the environment for developing applications for Android platform, what are the possibilities, what is the availability, and what can be done. Okay, developing for mobile and embedded devices, what should we keep in mind while developing for mobile device or any such small handheld device, and the tools for developing for Android, means what tools are available to us for developing application which can boost our development or which can help developing applications for Android. So let's start developing for Android. Android SDK provides all the tools and APIs we need to write powerful applications for the Android platform. So as I told you earlier, SDK, software development kit, for each Android version released there is a software development kit also released, and this software development kit is the thing which a developer will need. Okay, for a particular platform a particular SDK release is available, so that any changes which are made to the previous version of operating system are reflected as an API in the SDK, so that developer can use that new features of the platform. Okay, so it is very good that Android is also releasing SDK versions for each Android release, and this SDK version, as I told you, are referred as API, and each API is leveled according to its version. Okay, and these level are numeric integer value. If someone has little knowledge of Java, because this SDK is, in other words, it is an API, it is a collection of Java packages which we can include in our application and we can use. So if we have little or more knowledge of Java, it will be beneficial, because it will be very easy for us to write code for developing our Android application. So little knowledge means what? If you know the syntax of Java, how can we define class, how can we extend class, how can we use interface, what is anonymous class, how can we use anonymous class, what is inner class, such concepts of Java are clear, it will be very beneficial. Okay, inexperience in Java no need to worry, but having knowledge of OOPS language like C++ will also find it familiar. Requirements for setting the environment. So as a developer, what we need? We need SDK. Okay, but where that SDK, where you will put that SDK, उसको आप कहाँ पे रखोगे, कैसे यूज़ करोगे, कहाँ पे इस्तेमाल करोगे? आपको सपोज कुछ बनाना है, सपोज कि आपको टेबल बनाना है, आपको लकड़ियाँ दे दी, आपको
हथियार दे दिए, लेकिन बनाओगे कहाँ पे? कहाँ पे बैठ के? वो जगह तो होनी चाहिए ना कि जहाँ पे बैठ के या जहाँ पे वो आप काम कर सको। तो आपके पास एक माहौल, एनवायरनमेंट होना चाहिए, मतलब कि एक ऐसा IDE जिसे हम कहें, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहाँ पे आप कोड भी लिख सको और जहाँ पे आप IDE का इस्तेमाल भी कर सको। मतलब कि API भी वहाँ पे अवेलेबल हो और आपका कोड भी आप वहीं पे लिख सको, इवन टेस्टिंग भी कर सको। So as a developer, you need 3 things to develop application for Android platform. First of all, you need a proper operating system that supports development tools of Android. Okay, if you are using Windows, Unix, Linux, it is okay, it is good. Most of the operating systems support developing for Android. Okay, Android SDK, yeah, it is required, it is a must needed thing, because if SDK is not available, how can you write your code? अगर आप लिख भी दो, चलो आपको नॉलेज है, आप कोड लिख भी दो, लेकिन वो हमें पता है, आपको पता होगा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको सी लैंग्वेज की बात करूं, सी लैंग्वेज में आपको कोड लिखना आता है, आपने कोड लिख दिया, ठीक है, प्रिंटफ, स्कैनफ, सब फंक्शंस आपने उसमें यूज़ किए, लेकिन आपके पास हेडर फाइल्स है ही नहीं। जो हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं stdio.h, conio.h, वो हेडर फाइल जो इंक्लूड्स करते हैं हम, वो हमारे पास है ही नहीं, उसको इंक्लूड भी नहीं किया और आपके पीसी में भी नहीं है। फिर आपने कोड लिख दिया तो वो कोड कुछ काम नहीं करेगा, वो तो एरर देगा, बिकॉज कि प्रिंटफ, स्कैनफ जैसे getch जैसे क्लियर स्क्रीन जैसे फंक्शंस जो आपने यूज़ किए हैं वो उसको हेडर फाइल से अवेलेबल होते हैं आपके प्रोग्राम को। तो उसी तरह से हमारे प्रोग्राम में भी हम जब एंड्रॉयड की एप्लीकेशन का कोड लिखेंगे तो उस कोड में हम बहुत से पैकेजेस जैसे मैंने बताया वो इंक्लूड करेंगे SDK के, फिर उसके अंदर आए हुए क्लासेस इंटरफेस को यूज़ करेंगे। अब वो है ही नहीं हमारे पास, तो कोड लिखने से, वो तो जावा का प्रोग्राम आपको पता होगा कि कोर जावा में जब हम सपोज कि आप कोर जावा में डेट क्लास का यूज़ करते हो, डेट क्लास करंट डेट एंड टाइम डिस्प्ले करने के लिए, लेकिन आप उस पैकेज को जिसमें ये डेट क्लास अवेलेबल है उस पैकेज को इंपोर्ट नहीं करते, यूटिल पैकेज को, तो क्या होगा? इट विल गिव एरर। सिमिलर थिंग विल हैपन हियर इफ़ यू डोंट हैव SDK। तो आपका कोड लिख तो सकोगे लेकिन वो रन या कंपाइल भी नहीं होगा। या अनदर थिंग यू नीड इज जावा। सो एज वी आर राइटिंग कोड इन जावा, it should be compiled in bytecodes, and so minimum JDK version 7 is required for developing Android application. So 3 things: proper operating system, SDK and Java. अगर ये सभी चीज़ हमें एक जगह पे मिल जाए तो बेहतर होगा। डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग SDK, यस, SDK एक आवश्यक चीज़ जो हमारे पास होनी चाहिए अगर हमें डेवलपिंग करना हो तो। लेकिन अगर ये हमारे पास SDK अवेलेबल नहीं है तो हमें उसे डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। कैसे कर पाओगे? ओके, इसके लिए आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक बात यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज़ करते हो, जो मेरे ख्याल से 2013 से अवेलेबल है, एंड्रॉयड स्टूडियो, गूगल ने एंड्रॉयड के डेवलपर्स के लिए एक IDE, खास एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए IDE डेवलप किया हुआ है जिसे एंड्रॉयड स्टूडियो कहा जाता है। ये एंड्रॉयड स्टूडियो बहुत सी सुविधाएं देता है, जैसे कि SDK को अपडेट करना, SDK को इंस्टॉल करना, अलग अलग फीचर्स को, एक्सटर्नल लाइब्रेरी को इंक्लूड करना आपके प्रोजेक्ट में, एप्लीकेशन में। तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं स्टूडियो हमें देता है, एंड्रॉयड स्टूडियो, जिसकी चर्चा हम इसके बाद करेंगे। तो अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ करते हो तो आपको कोई परेशानी होगी ही नहीं, क्योंकि SDK आपको ऑटोमेटिक, मतलब कि जैसे ही आपका जो एंड्रॉयड SDK आप जो यूज़ कर रहे हो, अगर उसको अपडेट करने की आवश्यकता है तो ऑटोमेटिकली आपको स्टूडियो प्रॉम्प्ट करेगा कि न्यू रिलीज वर्जन इज़ अवेलेबल। वो तो आप यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैन्युअली आप करना चाहते हो, जैसे कि आप इक्लिप्स या ऐसा कोई IDE यूज़ करते हो, या इक्लिप्स
उसमें भी हम एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बना सकते हैं. इट इज़ अ थर्ड पार्टी टूल और थर्ड पार्टी आईडी, इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो इफ़ यू आर यूजिंग एनी सच IDE, you should manually download your SDK and install it on your platform, that is your PC. But it is not a big thing. There is no cost of downloading Android SDK. We just need to download it from the official site of Android, that is developer.android. जो उसकी वेबसाइट है गूगल की, उसमें से आप इजीली SDK का वर्जन आपके क्या कहते हैं हम वर्जन के अनुरूप डाउनलोड कर सकते हो, मतलब कि जिस वर्जन के लिए आप डेवलप करना चाहते हो उसके लिए. सो नाउअडेज ऑल वी नीड इज़ एंड्रॉयड स्टूडियो. अगर ये सब चिंता नहीं करनी है आपको, इस सब अलग अलग मैनुअल चीज़ें करने में आपको टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है, तो बेहतर एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करो, बिल्कुल परेशानी नहीं. द बेस्ट थिंग आई हैव ऑब्जर्व एंड एक्सपीरियंस अप टू दिस Android Studio. Yeah, it requires much space and also in terms of secondary memory and main memory. तो अगर आप Android Studio का यूज़ करना चाहते हो तो ये थोड़ी जगह तो ऑक्यूपाई करेगा. हार्ड डिस्क की जगह का तो प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, लेकिन रैम जब ये एग्जीक्यूट होगा, रन होगा, तो रैम भी उसको थोड़ी ज़्यादा चाहिए. मतलब कि अगर आपके पास 8 GB रैम आप यूज़ करते हो अपने PC में या लैपटॉप में, तो एंड्रॉयड स्टूडियो रन करने में आपको मज़ा आएगा. लेकिन 2 GB में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि जब एंड्रॉयड स्टूडियो रन होगा तो आपके PC को वो स्लो डाउन कर देगा. सो आई रिकमेंड यू एटलीस्ट 4 GB और 8 GB विल बी मोर फ्लेक्सिबल एंड कन्वीनियंट कंफर्टेबल वाइल डेवलपिंग. अदरवाइज स्लो हो जाता है उसका एग्जीक्यूशन, और डेवलपमेंट के टाइम पे आपको थोड़ा मज़ा नहीं आता, बिकॉज एज अ डेवलपर वी आर कंटिन्यूसली अपडेटिंग कोड एंड टेस्टिंग इट. सो if so much time is wasted in waiting for compilation and testing, then it gives a cumbersome feel to a developer. So अगर आपके पास Android Studio है तो बहुत अच्छा है. इट इज़ अवेलेबल ऑन द सेम वेबसाइट, तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एंड्रॉयड की वेबसाइट से. उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं. इट कम्स विद ऑल थिंग्स वी नीड टू डेवलप एन एप्लीकेशन. और इसमें देखा जाए तो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जो भी चीज़ चाहिए आपको, जो भी सोचो आप, जो भी मांगो, सब कुछ अवेलेबल है. कहीं भी बाहर देखने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी आपको. अगर आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो है तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल फॉर यू. ओके, सो you can say a kitchen, a well furnished and well availability of things and rich kitchen is available. If you want to cook any dish, you can. Earlier we need to download SDK, Eclipse and ADT. लेकिन जब एंड्रॉयड SDK का यूज़ हम नहीं करते थे, सॉरी एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज़ हम नहीं करते थे, और Eclipse या ऐसे कोई थर्ड पार्टी IDE का यूज़ करते थे या करते हैं अगर हम, तो हमें सभी चीज़ अलग अलग डाउनलोड करनी होगी. क्योंकि देखो Eclipse का यूज़ करते हम, तो ऐसा नहीं है कि Eclipse केवल एंड्रॉयड के लिए ही है. Eclipse तो जावा के लिए भी है, C++ के लिए भी है. तो अगर आप एंड्रॉयड के लिए Eclipse यूज़ करना चाहते हो, एंड्रॉयड की एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, तो आपको अलग से ये सब डाउनलोड करना होगा, अलग से ये सब इंस्टॉल करना होगा. ओके, एंड्रॉयड स्टूडियो. देखो एंड्रॉयड स्टूडियो भी मैंने कहा आपको कि 2013 या उसके आसपास से अवेलेबल है मार्केट में, और वो भी फ्री में अवेलेबल है. आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ गूगल ऑफ एंड्रॉयड. और उसके भी अलग अलग वर्जन्स अपडेट होते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के. उसके आधार पे, उसके अनुरूप आप अपना लेटेस्ट स्टूडियो डाउनलोड कर सकते हो, बेहतर रहता है. व्हाट इज़ इट? आपको भी ये प्रश्न हो सकता है कि ये है क्या स्टूडियो. इट इज़ एंड्रॉयड ऑफिशियल IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. मतलब कि डेवलपमेंट करने के लिए एक उत्तम जगह,
It is built for Android to accelerate our development and help to build the highest quality apps for every Android device. मतलब कि किसी भी प्रकार का एंड्रॉयड डिवाइस हो, क्योंकि आजकल मार्केट में ऐसा नहीं है कि भाई ये मोबाइल के लिए ही एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है. एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल और उसके अलावा इसके जैसे और भी डिवाइसेस जैसे कि टैबलेट, फैबलेट, ओके, और अलावा डिजिटल वॉच, घड़ी, क्लॉक भी आती, वॉच भी आती है. फिर आजकल सिक्योरिटी सिस्टम जो होती है, होम सिक्योरिटी सिस्टम, ऑफिस सिक्योरिटी सिस्टम, वो भी एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म का यूज़ करती है. टीवी, हम मार्केट में आज स्मार्ट टीवी आ रहे हैं तो वो भी एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे रन होते हैं, या उसमें भी हम एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर सकते हैं. यूट्यूब, मेल वगैरह हम उसमें भी, टीवी में भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, अगर आपके पास सेटअप बॉक्स नहीं है तो इजीली यू कैन कनेक्ट योर mobile's Wi-Fi with the Wi-Fi of the TV and use mobile data in TV to access online features or the features on demand. Okay, so बहुत से डिवाइसेस अवेलेबल है. किसी भी डिवाइस, अब देखो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म, देखो हम जब एप्लीकेशन बनाते हैं तो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए बनाते हैं, और ज़्यादातर केस में जब हम इस सब्जेक्ट के दरमियान जो एप्लीकेशंस बनाएंगे वो मोबाइल के लिए बनाएंगे, क्योंकि एंड्रॉयड, मैंने बताया आपको कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत से अलग अलग डिवाइसेस में रन होती है, लेकिन सबसे प्रख्यात जो डिवाइस है उसका, सबसे ज़्यादा जो उसका उपकरण चलता है वो है मोबाइल. मोबाइल एक ऐसा डिवाइस है कि जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम से चलने वाला सबसे ज़्यादा उपकरण है. टीवी भी है लेकिन वो कम होंगे इस मोबाइल के मुकाबले, क्योंकि घर में 10 सदस्य हैं तो 8 मोबाइल होंगे, 5 मोबाइल होंगे, लेकिन टीवी एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 एवरेज हो सकता है. सो बहुत से डिवाइसेस अलग अलग है. किसी भी डिवाइस के लिए आप एप्लीकेशन बना सकते हो, क्योंकि हम प्लेटफॉर्म के लिए बनाते हैं. हम एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं. तो अगर आप चाहो तो मोबाइल के लिए, अगर आप चाहो तो टीवी के लिए, अगर आप चाहो तो वॉच के लिए, टैबलेट के लिए, किसी भी डिवाइस के लिए एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो. इट ऑफर्स टूल्स कस्टम टेलर्ड फॉर एंड्रॉयड डेवलपर्स इंक्लूडिंग रिच कोड एडिटिंग, डिबगिंग, टेस्टिंग एंड प्रोफाइलिंग टूल्स inside the box. As discussed, Android Studio is the official IDE for Android development, and with a single download it includes everything we need to begin developing Android apps. क्या कहा है यहाँ पे कि Android Studio के अंदर क्या है? It is the official IDE, as we discussed, for developing Android applications for any type of Android device. एंड विथ सिंगल डाउनलोड, एक एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करने से उसमें वो सभी चीज़ें आ जाएगी जो एज अ डेवलपर आप चाहते हो, आप मांगते हो, यू एक्सपेक्ट और यू नीड. ओके, जैसे कि क्या क्या आता है उसके अंदर, इंटेलिज IDE प्लस एंड्रॉयड स्टूडियो प्लगइन. एंड्रॉयड स्टूडियो प्लगइन भी आता है जिसके द्वारा स्टूडियो को आप अपडेट भी कर सकते हो. फिर एंड्रॉयड SDK टूल्स या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टूल्स, वो भी स्टूडियो में साथ ही आएंगे, और स्टूडियो में से ही आप SDK को अपडेट भी कर सकते हो. एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म टूल्स, प्लेटफॉर्म के अलग अलग टूल्स आते हैं. वर्जन ऑफ द एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म, प्रॉपर वर्जन उसमें जो आप चाहते हो वो भी आएगा. फिर अनदर थिंग दैट इज़ Android emulator with an Android system image including Google Play services. Emulator मतलब कि वर्चुअल डिवाइस भी आएगा जिसके ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप मोबाइल के लिए डेवलप कर रहे हो तो हर बार आप मोबाइल में इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल करके चेक तो नहीं करोगे एप्लीकेशन को. तो ये स्टूडियो ही, एंड्रॉयड स्टूडियो हमें एक ऐसा वर्चुअल डिवाइस देता है कि जिसके द्वारा हम अपनी एप्लीकेशन का आउटपुट चेक कर सकते हैं. उसे AVD कहते हैं, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस. यूजिंग एंड्रॉयड स्टूडियो, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड स्टूडियो, या it is old version nowadays, 2.2.3. now the latest version is 3.3 or 3.4.
ओके 3.3 और 3.4 यो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉयड की वेबसाइट से यूजिंग एंड्रॉयड स्टूडियो। टू स्टार्टअप विथ यू नीड टू नो द फॉलोइंग। देखो एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ करना, हाँ पहली बार जब आप यूज़ कर रहे हो तो आपको पता नहीं होगा कि इसमें कौन सी चीज़ कहाँ पे होगी, लेकिन बहुत से आईडी आपने एज ए डेवलपर यूज़ किए होंगे तो वो आपके लिए कोई कठिन कार्य नहीं है किसी भी आईडी को यूज़ करना। फिर भी आपको कुछ चीज़ें हैं कि जो जाननी पड़ेंगी, जैसे कि अगर आप मेरा प्रैक्टिकल देखते हो, प्रैक्टिकल वीडियोस, तो उसमें आपको इजीली पता चल ही जाएगा कि कैसे इस आईडी को हम यूज़ करें। अदरवाइज यू कैन फाइंड मैनी वीडियोस ऑन यूट्यूब रिगार्डिंग हाउ टू यूज़ एंड्रॉयड स्टूडियो। ओके, यू कैन इजीली फाइंड आउट फ्यू वीडियोस ऑन इट। हाँ, जो आपको जानना है वो है कैसे इसको इंस्टॉल करें एंड्रॉयड स्टूडियो को, हाउ टू क्रिएट ए न्यू एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, किस तरह से नया प्रोजेक्ट या नई एप्लीकेशन हम क्रिएट करें स्टूडियो में, जावा का कोड कहाँ पे लिखे, वेयर टू राइट जावा कोड, वेयर टू डिज़ाइन द स्क्रीन्स, आपका लेआउट, मतलब कि जब आपकी एप्लीकेशन रन होगी मोबाइल में या टीवी में कहीं पे भी, तो जो दिखना चाहिए उसको क्लाइंट को, वो कहाँ पे डिज़ाइन करोगे आप, स्क्रीन फ्रंट एंड जिसे कहते हैं। वेयर आर द रिसोर्सेज कहाँ पे रखे हैं, इसमें रिसोर्सेज क्या होते हैं ये आपको पता चल जाएगा। हाउ टू क्रिएट एवीडी, वर्चुअल डिवाइस को कैसे क्रिएट करें और कौन कौन से वर्चुअल डिवाइस अवेलेबल है। वेयर द मैनिफेस्ट फाइल इज, मैनिफेस्ट फाइल कहाँ पे है, उसे कैसे अपडेट करें। हाउ टू रन दी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को रन कैसे करें। ओके, ये सभी चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी। तो जैसे आप स्टूडियो को डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो, तो ये सब चीज़ें जानना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली ये सब जान जाओगे, चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एज यू विल यूज़ इट, you will become used to this Android Studio and you will learn how and where what is available because it is very user friendly, so आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है।